3. Our target of doing mathematics will be not a single problem goes unattended. If a problem is not to be done, I will tell you which problem is not to be done, but we do everything. And if you are doing everything from here, whether your school is teaching you an NCERT book or your school is teaching you some other publisher's book, you are in grade 8 now, you have done everything. You have done the universal set of problems. तो आपको और कोई डरने की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? So the first exercise is a exercise which will involve a lot of previous class knowledge for you. Okay, so let's start. And I'm not bothered about you doing the problem immediately. I'm more interested in you learning how to do the problem. ठीक है? तो आप पहले फटाक से खुद से करने की कोशिश मत कीजिए. Although if you may know the problem, wait for me. ठीक है? So we're starting with exercise. Sorry. We are starting with exercise 1A. So this is how we start. Rational numbers, we will be doing all problems. Exercise 1A. And I'm starting with problem number 1. It tells me express. Can anyone dictate the problem for me? Express. Slowly. Okay, as a rational number, okay, with denominator, rational number with denominator. Okay. Now what we do in this case, yeah. I think the answer should be in that. No, I'm not asking you to write the question. You will. I'm writing it so that this is the first problem. When you solve your problems, hold on. Let me complete. You will write question number 1, part A, B, C, D. Okay. So it's 3 by 5. Hang on. Don't start doing the problem. I know you know how to do the problem, but I'm more curious about how you will do this problem with denominator. Okay. And if you see these sort of problems, we have got 4 options. 1, 2, 3, 4 parts, right? Whenever a question has parts, we do it in galloping manner. What is galloping? Like a horse. So we do the odds here. 1 and 3 will do here. So the 2 and 4 goes for your homework. Are you understanding? नहीं तो एक ही के 4 problem करके कोई फायदा नहीं है यहाँ पे. 1 and 2 you do here, and 3 and 4 goes for your homework. And whatever you do, you always keep a pencil. You can tick it off, right? Deface नहीं करते हैं book को, right? So I'm doing, say, number 1 with denominator. It says 20. Now I take my rational number. What is my and we do it like this. The solution of this problem, always write solution. And the solution of this problem is a negative 3 by 5. And you want it to be expressed as what? A rational number with 20. And what is your denominator right now? 5. And 20 is greater than 5. So obviously the operation that we will do here is a multiplication. Is this समझ में आ रहा है तो Shreyas? We'll do a multiplication. Now when you do multiplication on any rational number, then the concept of equivalent fraction comes up. You just can't love the denominator. You have to love the numerator also. Otherwise there will be a fight in the house, right? You can't give dairy milk to this fellow. So how do we do this problem? We are going to apply what? I'm using a different color to just make it simple for you. So if I multiply, my interest for this problem will only be for the denominator. That if 5 multiplied by 4 gives me 20, then the numerator has no other option. The numerator has to be multiplied by 4. So what is the new number that we get? Minus. So hope you know what is minus into plus. All these you know. Minus 3 into 4 gives you minus 12. So this is the rational number that we had to get. Clear? Can you do now same way 3? Try to do 3. No simplification. Why you are not doing simplification? So that normal answer is simplified. That we will see. It's like how they have asked us. Here they have asked us, give us idli. If it is idli dipped in chutney, then we'll dip in chutney. हाँ आंसर क्या करो और हमें एक और पेंसिल ले लीजिए अपना कोई एक पेंसिल या स्केल और उसको आंसर के पेज में लगा के रख लीजिए. The answers will be there in this textbook itself. See, there will be answers right behind the book. ऐसे ही पोस्ट इट रहता है ना आपके पास बुक मार्कर, एक बुक मार्कर डाल के रखो, डाल दीजिए. मैं आंसर्स के पेज भी आपको बोल देता हूं so that you need not ask me. So you are on page 304.
304 में अपना रूलर डाल दो. Put the ruler in on 304. ठीक है, अभी आप चेक कर सकते हैं हर प्रॉब्लम में, राइट? सो 2 and 4 goes for your homework. Fine. The next question is express. What is the next question? The next question is express. Now we have to make this rational number. A rational number with denominator how much? 7. अब खुद को सवाल पूछिए, is 7 less than 98? Yes. यहाँ पे क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? Division as an operation करना पड़ेगा. So how? The same thing. If you have to now divide this particular denominator by some number. कितने से करने से 7 आएगा? What should be that number? इसका ट्रिक सिंपल है. आप क्या कीजिए? This is on always when you do maths. Make one working column also, children. Have a working column. No doing kitchen pitcher outside. So you should have a working column and make one column like this. Sorry. Make one column like this. This is your working column. ठीक है? This is your working column. WC. ये हमारा working column. In order to solve this problem, you straight away take 98 and divide 98 by 7. चलो 90 scale चाहिए, बहुत सारे scales है. Anyone wants it? 14. Yeah, 14 will be the number. So if you divide 7, 1 times is 7, 2 comes down, then 28, 7, 4s are 28. That means 98 has to be divided by how much? 14. So if you are dividing 98 by 14, you should divide 42 also by 14. Yes, very good. So the answer 98 divided by 14 gives me how much? 7. 42 divided by 14 will give me negative 3. You don't say minus 3, it's negative 3. Minus is always an operation. Okay? Number 3, same problem. So that goes for homework. Will you be able to do it? 60 को 5 में बदलना है. Very easy. You'll be 12 से divide करेंगे तो हो जाएगा. ठीक है? Now, next problem, if you see question number 4, it has again 4 parts. So your wish, see, I'm not very sometimes I say do the odds here, do the evens here, so you can play. इस बार क्या करो? Odds घर में करो, evens यहाँ कर लो, आपकी मर्जी. It's not that what Abhigya is doing same pattern Mishka has to follow. Mishka can do 2 and 4. Your wish. I wanted to do 2 out here. Or if Sarvesh says no sir, I'll do 1 and 2 here and 3 and 4 at home. I don't mind. End of the day, all should be done. क्या लिखा है इसमें बोलो बेटा? This is your question. Make it in standard form. Acha, what is standard form? How many of you? Simplest form with no negative at the denominator. No negative. Okay, let us learn something. Let's say we get a number 3 by negative 5. Before doing this problem, 3 by negative 5. Is there anything wrong in writing this number? It's not wrong. But as we do, किसी घर में चप्पल खोल के घुसते हैं, एक प्रोटोकॉल होता है. So the protocol is negative should not be here. So many people say negative goes up. ऐसा नहीं है. Tell me, negative अपने आप ऊपर नहीं जाता है. Actually आप क्या करते हो? You start loving the numerator with a negative 1 and you love the numerator with negative 1 and the denominator with also a negative 1. Now see, negative 5 into negative 1 gives me positive 5 and this becomes negative 3. Okay. So we don't show this step. हम ये step दिखाते नहीं हैं, but we just simply swap it up. So are we ready for question number 5 now? No, sorry, question number 4 in standard form. Let's start in standard form. What is the first number? No, question 4. Negative 12 by question number 4 I'm saying. Question number 4 first part is negative 12 by 30. So try to do it. Yearly. You can keep this. So how do we do it? Now, do you know at grade 8 you are expected to do a little bit faster. Okay. So one way would be yes 2 is common because both are even. और थोड़ा बड़े नंबर में जा सकते हैं. 30 is always a multiple of 3. Right? 30 is not a multiple of 4. आप 3 से भी काट सकते हैं. 6 से भी काट सकते हैं. 6 से और faster होगा. So you can do it with 6. 6
into negative 2 gives you how much? Negative 12. 6, 5 gives you how much? 30. So the answer would be negative 2 upon 5. Children, if you are not familiar with this, you can start to do it with 2 also. No harm. No harm at all. But just don't. आप ऐसे भी कर सकते हो. Negative 12 by 30. So how do we do it? You can take 2 as your common. 2 minus 6, 12. 2, 15 is 30. After that, we can take 3. 3 minus 2 is 6. 3, 5 is 15. So the answer is minus 2 upon 5 or negative 2 upon 5. शेष हो रहा है? क्लियर? तो इसमें चारों करते हैं. लेट्स नॉट लीव फॉर होमवर्क. चलिए बाकी 3 कीजिए एंड टैली द आंसर्स. थोड़ा हिसाब बताओ. मैं क्यों पीछे है ना? आंसर तो है पीछे. टैली करो. मैथ्स का तो मजा ही वही है ना. Or else you say the answer, some other boy or girl here can get back to you. आया ना? हाँ तो बोल दो करेक्ट है. ये ले लो. उसको दूर हो गया है. You take this book, not an issue. She is far off from this. You narrate me, that's fine. I can. No issues. स्केल डाल दो उसमें भी. 304 या किसी में था ना. Do all the 4. मिला कि नहीं मिला? ना ऐसे ही हंस रहा है. मैच किया तो हाँ. Done, all 4 done. So we'll wait for some time. Let everyone do all the 4. And then we go to the 5th one. ऐसे ही करना है. कुछ नहीं छोड़ना है. Anyone getting stuck up? Anyone needing help? Do not hesitate. नहीं 5th में क्या है क्वेश्चन? अभी तो बुक नहीं है मेरे पास. Which of the 2 rational numbers? Okay. Which of the 2 rational numbers is greater than the given pair? Or given pair. Okay. So let's try with what happened? What was the question? Tell me, dear. 24 by negative 64. Okay. So I will do it in a faster manner. I know that it's ये 4 से जाएगा. 4 6 times is 24. 4 16 times is 64. 16 4 64. 4 6 24. Then किससे जाएगा? 2 से जाएगा. 2 3s are 6. 2 8s are 16. So I am getting a 3 upon negative 8. But in standard form, it will be negative 3 by 8. 12 cannot be divided by 64. 12 5 is 60. ठीक है. Shall we go to the next problem? It's interesting. चलो next problem करो. अभी क्या आसानी करते हैं. क्या लिखा है उसमें? कंपेयर करना है. 0 के साथ कंपेयर करना है तो आंख बंद करके कंपेयर. बट व्हाट दे हैव आस्क्ड, mind you, be very careful. Which of the following 2 rational numbers is greater? लेकिन नेगेटिव होगा तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा. याद रखिए. ओके. द फर्स्ट पेयर इज व्हाट? टेल मी. 3 by 8 और 0. इसमें तो कुछ सवाल ही नहीं आता है. 3 by 8. 3 by 8 is greater, not 0 is greater. If it was, who said 0? If it had been negative 3 by 8, then 0 is greater. Okay. Next वाला कितना है? minus 2 by 9 and 0. Now 0 is greater. Whenever there is a negative ना, डबल ध्यान से करना है. नेगेटिव आपको धोखा दे देगा. चलो करो. You're there, Ryan? कुछ लफड़ा हो रहा है? हाँ तो कर लो उसको पहले आराम से. This exercise
will be a comfortable exercise. Anyone has slightest doubt also, do not hesitate. आप छुपा दोगे तो remember you are with a doctor, don't hide anything, नहीं तो बाद में सेप्टिक हो जाएगा. हाँ ये तो बोलना, टेंशन ले रहा है कुछ. Which one? बोथ आर नेगेटिव तो देखेंगे ना, कौन सा है देखो. Which one? This one, number 4. No, tell me number 4. Tell me, we'll see how to judge it. Minus 4/7, and what is the other number? Minus 5/7. Same is. So minus 4/7, minus 5/7. So first we should take the call on the denominator. Are they like fraction? Yes. Now we take the call on numerator. We studied numerator में कौन बड़ा है? -4 बड़ा होता है, तो automatically. अच्छा, don't do that. Many children, that's a very sad affair when you write the wrong question and pick up the wrong thing. That happens when you're fickle-minded. हमेशा ध्यान से. So can I say that we have done all questions of 5? Anyone, anything pending? I'll wait. 6th में चले गए आप? अच्छा 6th part कर लीजिए, 5 के सारे कर लीजिए, तो आपका घर के लोड कम रहता है. हाँ कर सकते हैं. 6th वाला क्या है? Which of the following rational number is greater? Same question. कर लो 5 और 6 करके. सो आज मेरे आराम है थोड़ा सा, आई एम हैविंग आराम. ध्यान हो रहा है तो हाँ 5 और 6 देख लीजिए आराम से. नेगेटिव आने से यू ऑलवेज शुड हैव योर आईज फेड. नेगेटिव कैन ऑलवेज टेक यू फॉर अ राइड. शेयर्स हो रहा है तो why not? You should. The long ruler is there. Use it. Don't waste pages. And try to be neat in your work, as neat as you can be. Remember, the person who comes to check your copy, he or she also has a family. हाँ आ रहा हूँ. जहाँ घर पे सुबह उसका भी झगड़ा होता होगा, स्कूल से पहले सॉक्स नहीं मिलते होंगे, लेट फॉर द बस, एंड देन ये गेट्स अ कॉपी लाइक यू, रिटन इन जलेबी मेथड, तो सारा गुस्सा उसके ऊपर निकालेगा, है ना. हाँ शेष बोलो बेटो. 6 बिट. 6 में 6 का क्वेश्चन क्या है? मैं जरा क्वेश्चन देखो, मेरे पास तो बुक नहीं है. अच्छा चलो शेष पहला वाला करते हैं 6 का. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6. अच्छा 5th क्वेश्चन का 6 बिट. चलो बताओ मुझे 5th क्वेश्चन का 6 बिट क्या है? -1/2 और दूसरी तरफ क्या है? -1 है. अब इसमें डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है. वी हैव टू टेक अ थॉट प्रोसेस. ठीक है, ये कितना है? -½ wait na, and this is how much? -1. See, when somebody is asking a question, that means the child has not understood. So rather than if you only give the answer -1/1.5, we are not helping the child. So we have to help. So let's ऐसे ही सोच के देखो श्रेयस, ये 0 है. ठीक है, -1 कहां पे होगा? यहां पे होगा. और ये है -½ अगर तो 1 कहां पे होगा श्रेयस? यहां पे होगा. अगर मैं आपको हाफ बोलूं तो कहां होगा? 0 और 1 के बीच में. ये हाफ नहीं है, ये -½ है, तो ये 0 और -1 के बीच में होगा. यहां पे आया आपका -½ अब इन दो नंबरों में कौन बड़ा है? बड़े किस साइड में होते हैं बेटा? इस साइड में जितने हम जाते हैं हमारा नंबर बड़ा होता जाता है ना, और इस साइड में नंबर छोटा होता जाता है. देखिए आप लाइफ में नहीं भूलोगे. अब बताइए बड़ा नंबर कौन सा है? मुझे तो लगता है -½ बड़ा है. हाँ बड़े किसी, यहां से छोटे नंबर आ रहे हैं ना. 1 और 2 में कौन बड़ा है शेष? 1 और 2 में कौन बड़ा है? 2. ये छोटा. इससे छोटा कौन है? 0. उससे छोटा कौन है? उससे छोटा ये घर का बड़ा बेटा, ये नेक्स्ट बड़ा बेटा, उससे छोटा, ये उससे छोटा,
ये सबसे लास्ट वाला बच्चा, इन दोनों में कौन बड़ा है? कड़ाक से आंसर कभी मत लिखिए, हमेशा से लॉजिक अप्लाई कीजिए, आपको खुद आपका आंसर मिल जाएगा। 6 तक जब हो जाए तब मुझे बोलिएगा, अप टू क्वेश्चन 6 खत्म। ओके 7 क्या है? या इफ यू आर थिंकिंग यू आर कंफर्टेबल यू कैन स्टार्ट, आई डोंट माइंड। एंड व्हेन यू स्टार्ट ऑलवेज रिमेंबर, अभी क्या 7 अगर आप कर पाते हैं कीजिए, अगर आपको लग रहा है आप फंस रहे हैं मुझे पूछिएगा, आई लाइक इट, वो शेष जैसे पूछ लिया। सर्वेश ऑल गोइंग ओके? कहां तक यू हैव डन? डन 6, मूव टू 7। कौन? -12 बाय, और एक नंबर क्या है? -3। चेक करो तो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब माइनस ऊपर ही है ना, नीचे माइनस तो नहीं है। 3 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 3/1 लिख सकते हैं ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो दोनों को देखो, 12 इंटू -12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -12, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -15। अब -12 और -15 में कौन बड़ा है? एक मिनट, आप इस तरफ जा रहे हो ना, कौन बड़ा है? -12 बड़ा है। 0, -1, -2, -3, -4, -5, इस साइड जितना जा रहे हैं छोटे होते जा रहे हैं, राइट में नंबर्स बड़े होते हैं, तो कौन बड़ा है? ये साइड हमारा बड़ा आ रहा है, ये बड़ा है, सीधी सी बात। यस मिशको, LCM मेथड यूज कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं, पर आपको टाइम लगेगा, मत कीजिए, मैं बोलूंगा। आइए आपको भी सिखाते हैं। क्वेश्चन 7 का कोई भी एक प्रॉब्लम उठाओ बेटा, कोई भी एक प्रॉब्लम उठाओ, सीखते हैं ना, मैथ सीखते हैं। हाँ ओके, आप कुछ मत करो, आप मेरे साथ देखो, दोनों तरीके से करके देखेंगे, आपको टाइम सेव होगा। -3/7 और 6/-13, ये क्वेश्चन है। पेन्स डाउन, दोनों इसको देखो, आप भी देखो, आप भी देखो, देखो इसको। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लो। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है, ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -3/7 और इस नंबर को -13/6 हो गया। ओ क्या लिख दिया मैंने? -6/13 हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होने के बाद हम सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -39 आएगा बेटा, और 7 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा? -42। अब बताओ इनमें कौन बड़ा है? कौन सा साइड बड़ा आया? बायां साइड। इतना छोटा है? नहीं, अभी संतुष्ट नहीं होना है। आइए अभी एलसीएम मेथड करते हैं। हमारे पास नंबर्स क्या क्या है? -3/7 और -6/13। 7 और 13 का एलसीएम कितना होता है बेटा? 13 7 91 होता है। अगर इसे 91 करना है तो 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो गया? 39। इसे 91 करना है तो 7 से करना है। देखो तो अल्टीमेटली नंबर्स वही बन रहे हैं, है ना। अब ये क्या हुआ? ये हुआ हाथ से पीसना, या हम मिक्सी से पीस रहे हैं। हम बेवकूफ हैं क्या जो हाथ से पीसेंगे? अब देखो इसमें भी कर देते हैं। अब वही खेल इसमें खेलते हैं। देखो कैसे खेलेंगे। मैंने यहां भी एक 91 डेयरी मिल्क ले लिए, यहां भी। अब आप ही की तरह बन गया ना भाई साहब। तो इतना मेहनत क्यों करना है? इसी से हो जाता है ना। समझ में आया श्रेयस? इतना मेहनत क्यों करेंगे? आ रहा हूं 1 मिनट। इतने में हो जाता है, तो ये सब नहीं करना है। क्या क्या चेक करना है याद रखो। सबसे पहले वंस यू गेट द नंबर, और अगर अच्छा नंबर देखो, श्रेयस ने एक मुझे नंबर दिया था -3, तो इसको इसका आसन दिला दो। आसन मतलब बैठने की सीट 1, और फिर चेक करो कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। उसके बाद क्या करना है? प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद गलत किया तो CB PM, CBPDM। CBPDM मतलब समझते हैं? चुल्लू पर पानी में डूब मरो। हाँ, why not dear? 8 I can't leave it for my girlfriend, now you have to do it.
Yes, Yadu, where are you? You two are having some joint venture company. Which one? ए सेवेंथ वाला हुआ कि नहीं? ये टेक्निक समझ में आया? तो तुम किससे कर रहे हो? एलसीएम बना रहे हो क्या? एलसीएम बनाने से टाइम लगेगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई फास्ट होगा। श्रेयस सीखे? सवाल आता है, तुमने वो पहला मैथ्स का वर्कशीट किया था घर पे? अच्छा, बढ़िया। किसी भी दिन तुम नीचे ही रहते हो, मैं जाके घर में रेड मार लूंगा। हाँ, कोई बात नहीं, वो वेक्टर्स फॉर्मेट है, वो पजल टाइप है, देखने से वो भी हो जाता है। एक पार्ट में समझाया अमाउंट ऑफ, वो उसमें गिनना चाहिए था ना कितना, ईच जैसे कैसे रहता है, ऐसा रहता है उसमें, सिर्फ ग्राफ क्वाड्रेंट में है ना, ऐसा है। मान लो ये एक पेपर है, सपोज आई से दिस फोर्स इज 2 न्यूटन, मतलब ईच ब्लॉक है 3 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन। इसी के पास एक और फोर्स ऐसा रहेगा तो ये कितना है? 1 न्यूटन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ग्राफ पेपर जैसा है, 1 1 1, तो ये कितना हो गया? 3 न्यूटन। ये कितना हो गया? 1 न्यूटन। ऐसे भी कर सकता है। मिश्का समझ में आया? 7 वाला आसान लग रहा है अभी? बस। Resultant force, in your case, both the forces will all, there won't be any angle, they are all straight. So if they are pointing in the same direction, you just algebraically add them. Opposite, then bada minus chota, whichever. See, opposite means this is 3 Newton, this is 7 Newton. So finally resultant is what? 4 Newton on this side. ये 7 से खींच रहा था, 7 रोटी ले लिया, 7 डोसा ले लिया, 3 डोसा उधर ले लिया, कितना बचा? 4 डाल दो उसको नंबर। क्या तुम लोग दिमागा लगाओ भाई, दिमागा घर में छोड़ के आने से थोड़ी चलता। हाँ भाई, अभी क्या मैडम आप चुप हैं बहुत देर से? कितने नंबर पे हैं? हो रहा है, गाड़ी चल रही है। अने सर, वेयर आर यू? व्हीकल मूविंग? शेष भाई साहब, ट्रैफिक जाम खुला? ट्रैफिक खुला ना? अभी आगे ओआरआर दिखेगा, देखना, स्पीड बढ़ जाएगा गाड़ी का। सर्वेश ऑल ओके? सर्वेश ठीक है, हमारा मिनी माउस जैसा एकदम फटाफट चुपचाप रहता है, साइलेंट। Hey Anay, why do you stop in between and start doing this? We have to finish it. चलो। कौन सा? Arrange you can do only with LCM method. हाँ, arrange में क्रॉस में don't show दिमाग। हाँ, arrange can be done only in LCM method. हाँ, but if all the denominators are same, then there is no issue. But they are not so kind. They will never give you with all denominators same. वो एक दो डिनोमिनेटर को क्या करेगा? जगल कर देगा। अभी क्या आप किसमें हो? अरेंजिंग असेंडिंग डिसेंडिंग में हो? अच्छा, अरेंजिंग असेंडिंग का एक प्रॉब्लम मैं करना चाहता हूं आपके सामने। एक क्वेश्चन बताइए तो, कोई भी एक। ओके, चिल्ड्रन लुक हियर, children look here, hey, both of you, question number 8, कौन सा पार्ट करा रहे हो अभी किया मुझसे? 4th, बोलिए। -4 by 7, -9 by 14, 13 by -28, -23 by, अच्छा श्रेयस भाई साहब देखिए, अगर आपको ट्रैफिक जैम से निकलना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म करना है। आइए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेते हैं। सो the given problems can be -4 by 7a, no talking. Another is -9 by 14, यहाँ पे -13 by 28, और यहाँ पे -23 by 42। ये बड़ा आसान प्रॉब्लम है। Now we are supposed to take the LCM of 7, 14, 28, 42. And all my children, you all know, can 7 kill 14? So if 7 can kill 14, between 7 and 14, what is the LCM? 14. The bigger number is always the LCM. क्या हो गया? क्या LCM cannot be smaller than the two numbers? मैंने बताया था ना, LCM आगे चलता है।
क्या 7 जी आई एम टीचिंग यू ट्रिक टू डू मैथमेटिक्स। क्या 7 14 को किल करता है? यस। इसमें बड़ा कौन है? 14। तो ये दो का तो हो गया। 14 और 28 को कंपेयर कीजिए। कैन 14 किल 28? यस। देन हु इज द एलसीएम? 28 is the LCM. Now 28 and 42. Can 28 kill 42? Yes. 28. Can 28 kill 42? No. No. How can 28 kill 42? 28 cannot kill 42. Therefore, no. Wait. Therefore, your entire LCM can be, if you are smart in mathematics, you just need to solve this and find the LCM. ठीक है? इसको अगर हम 7 से करें, मैं दोनों तरीके से करूंगा। 7 4 times is 28, 7 6 42, and then 2 से करेंगे 2 2 4, 2 3 6, 7 2 14 and 6. So my LCM is how much? 84. Suppose you say, no sir, I don't like your way. I will go by the मजदूर वे। तो चलो मजदूर की मेथड में करते हैं। 28 और 42 इसका LCM एक साथ निकाल लो। क्या क्या होगा? 7 1 जा 7 2 4 6। इसके बाद क्या करेंगे? 2 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। देखो तो कोई देख नहीं रहे हो, यही मुझे खराब लगता है। नो वन, एवरीवन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, यू नो, यू हैव सीन 3 इडियट्स। प्री राजुलाइजेशन और फरहान नाइट्रेट ढूंढिए। सब रेस में लग गए, फरहान नाइट्रेट और प्री राजुलाइजेशन। अब अपने जिंदगी का 1 सेकंड रिवाइंड करो। क्या किसी ने यह सोचा आज कुछ नया सीखने को मिलेगा? रेस में लग गए सब, आप भी रेस में लग गए। ये देखो, ये मैंने मेहनती टेक्निक से किया। आई टुक ऑल द नंबर्स एंड आई सॉल्व देयर एलसीएम। क्या क्या नंबर मुझे मिल रहा है? 7 2 2 3। ये मैंने चालाकी से किया है, नंबर तो वही मिल रहे हैं। कैसे कंपेयर किया? 7 को 40। दिस इज जस्ट लाइक योर थ्रो बॉल वगैरह कंपटीशन खेलते हैं ना, ए और बी टीम को पहले खिलाओ, जो जीता वो सीडी के विनर के साथ खेलेगा। तो खिलाओ, 7 और 14 में कौन जीत रहा है? 14। 14 को 28 के साथ खिलाओ, 28 जीत रहा है। 28 42 को नहीं मार सकता है। तो हम मेहनत सिर्फ यहां करेंगे ना, इधर गधे की तरह इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? You when you go to school, you will see all your classmates doing the LCM of all these numbers. That's where you will save time. आप सिर्फ इसका करो। So how much is your LCM? 84. अब हर नंबर को 84 में बदलना है। आइए, 84 का डिनोमिनेटर बनाना है। -4/7 कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? अब यहां पे भी टेक्निक है, हमें नहीं पता कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी देखो देखो देखो, टेक्निक देखो। वी हैव टू गेट 84। ये आपको, सो आई एम गोइंग बाय दिस एलसीएम, राइट? आई एम गोइंग बाय दिस एलसीएम। जस्ट 7 को हाथ से ढक दीजिए। व्हाट इज योर एलसीएम? योर एलसीएम इज दिस। 7 को ढक दो हाथ से। क्या क्या दिख रहा है? 2 2 और 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी यहां 12 से मल्टीप्लाई होगा। कितना हो गया? 84 माइनस 48 हो गया। नेक्स्ट नंबर कितना है बेटा? -9/14। अब आप बोलोगे सर आपका टेक्निक तो यहाँ फेल कर रहे हैं, यहाँ तो 14 दिख ही नहीं रहा है। मैं बोलूंगा भूतनी के हो तुम, यही तो 14 है। 7 × 2, तो क्या बचा? 2 × 3 कितना होता है? 6। हटा लो 6, कितना हो गया? 84। 9 6 54। अगला नंबर कितना है? -13/28। अब आप बोलोगे सर आपके यहां तो 28 दिख ही नहीं रहा है। मैं बोलूंगा तुम हो अंधे। 7 2 14 2 28, 3 बचा है, डाल 3 अभी इसमें। 13 3 जा 39, 84। लास्ट नंबर कितना है? -23/42। तो तुम बोलोगे सर ये 42 भी हमें नहीं दिख रहा है। तो हम कितना देखेंगे? 7 2 14, 14 3 जा 42। ये 2 बचा हुआ है ना, ये 2 डाल दो यहाँ पे। अरे मैथ्स इजी चीज है भैया, लोग ऐसे ही घबराते हैं। -64। चारों नंबर मिल गए अभी इन टर्म्स ऑफ 84। अब आपका ध्यान इसमें रहना चाहिए। लुक, योर आईज शुड बी फेड ऑन दिस नंबर, दिस नंबर, दिस नंबर एंड दिस नंबर। यस, अभी ये टेल मी नाउ, असेंडिंग पूछा या डिसेंडिंग? असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है? ये। तो हम लिखेंगे -64/84, सबसे छोटा। इसके बाद ये -54/84। इसके बाद
-48 बाई, इसके बाद -39 बाई, एंड ऑल यू प्री रेजुलाइजेशंस, कीप योर आइज। ये क्वेश्चन दिया था कि आपको? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं दिया था आपको। क्वेश्चन में नंबर्स ऐसे दिए थे, ऐसे। These were the questions which you had to answer. 1 minute, yeah. What? So the last one, 23, 46. Sorry. I went wrong here. 46. 46. So 1 minute, huh? So this will again go for a change. I'm sorry. So this is -46. So this becomes 64, then -54 by 84, then -48 by 84, then -46 by 84. All done? 1 2 3 4. What did I do wrong then? हाँ, 64 जो कर लिखा है उसको काट देना है, या so and then one more left, -46 and -39 by 84. Now hold on, this was not the question. The question was ये नंबर। तो अभी आपको अपना नजर किस में लेना है? अभी आपको नजर ओरिजिनल नंबर्स पे लेना है, ओरिजिनल्स। और इस ओरिजिनल में थोड़ा सा चेक कीजिएगा, ये नहीं, ओरिजिनल ये है। अब वैसे सजा दे, बोलो 54 किससे पैदा हुआ? -9 by 14। उसके बाद 48 किससे पैदा हुआ? -4 by 7। उसके बाद 46 किससे पैदा हुआ? -23 by 42। और लास्ट में कौन बचा रहता है? लास्ट में बचा रहता है 13 by -28। दिस इज हाउ यू डू द प्रॉब्लम। ये लास्ट स्टेप समझ में आया शेष? कहां तक समझ में आया? बोलो। ये एलसीएम समझ में आ गया, सबको चेंज करना समझ में आ गया, सजाना समझ में आया? सजाना समझ में नहीं आया। अच्छा, सजाने का चीज देखते हैं, आ जाओ। ओके, 1 मिनट श्रेयस आपके लिए। चलो फिर से देखते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ। हमारे पास नंबर था 4/7। ये नंबर कितना निकल गया श्रेयस? -48 by 84। उसके बाद हमारे पास क्या था? 13 by -28, जो कि बना -13 by 28। ये नंबर कितना बन गया? 84 पे कितना? 39, -39। उसके बाद क्या था? -9 by 14। ये नंबर कितना बन गया? -54 by 84। उसके बाद क्या हो गया? -23 by 42। ये नंबर कितना हो गया? -46 by 84। इतना समझ में आया बेटा आपको? अच्छा, ये सारे नंबर अभी लाइक फ्रैक्शन है। किसी फ्रैक्शन को बड़ा या छोटा कहने के लिए सबसे पहले चेक करो कि वो लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं। ये लाइक फ्रैक्शन नहीं थे, हमने लाइक फ्रैक्शन बना लिया। अब हम सिर्फ न्यूमरेटर पे कॉल लेंगे। द कॉल विल बी टेकन ऑन न्यूमरेटर। व्हाट यू आर लैकिंग इन योर अंडरस्टैंडिंग इज द नंबर लाइन। देखो, तुम्हारा गड़बड़ी यहां पे है। ये नंबर लाइन हुआ बेटे। इस साइड में नंबर्स जो है ना, यहां से यहां तक हमेशा बढ़ते हैं। कैसे है? नंबर्स बढ़ते जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। ये है 1 तो ये है -1, ये है 2 तो ये है -2। इस साइड जाएंगे तो -3, -4, -5, -276, कहीं -383। ये छोटे नंबर्स हैं। माइनस में जितना बड़ा बड़ा देखोगे उतना ही छोटा है वो। अगर आपको कोई पूछे 1 बड़ा या -383, 1 बड़ा है, कि ये इस तरफ है, ये याद रहेगा। आ जाओ अभी वापस। अब यहां पे देखो, सारे नंबर माइनस में हैं। तुम्हें किस में सजाने बोला है? असेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े तक जाना है, तो सबसे पहले छोटा नंबर लेना पड़ेगा। लेकिन ये माइनस में है, जो नंबर सबसे बड़ा दिख रहा है माइनस में वो सबसे छोटा है। तो यहां पे सबसे बड़ा कौन है? 48, 39, 54, 40। ये -39 नहीं, -39 इज द -39 इज ए बिगर नंबर। छोटा नंबर ढूंढना है हमें, छोटा ढूंढना है ना।
आप माइनस भूल जाओ, आप सिर्फ नंबर्स को देखो। 54 बड़ा है ना, पर नेगेटिव लग गया तो 54 सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा नंबर हुआ हमारा? -54/84। इससे बड़ा 54 के बाद कौन आएगा? -48/84। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद कौन आएगा? -बाय। लेकिन क्या क्वेश्चन में ये नंबर्स दिए थे आपको? क्वेश्चन में क्या दिए थे? ये सारे नंबर दिए थे। अब सबको सबके गांव के साथ लिंक कर दो। -54/84 कौन था? -9/14। -48 कौन था? -46 कौन था? -23/42। और -39 कौन है? 13/-28। जैसे हमने दिया हमने वैसे लिखा। ये है आपका आंसर। अब आप क्लियर हुए? सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, सॉरी लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए वी विल नीड एलसीएम हेल्प। एलसीएम में थोड़ा दिमाग लगाना है, या तो गधे की तरह पूरा एलसीएम कर लो, कोई मिस्टेक नहीं है, बस टाइम ज्यादा लगेगा, या फिर मिक्सी चलाओ। एक और प्रॉब्लम करें? आओ मुझे बताओ, एक और प्रॉब्लम शुरू से करते हैं, चलिए बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, बताओ वहां से। वेरी गुड, बोलो बोलो बेटा, कौन सा है ये क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 8 बिट 2। बोलो क्या क्या नंबर है? -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-24। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, है ना? आओ मेरे साथ करो, हम स्टेप एक साथ करेंगे सब। इतना कर लो और रुको मेरे लिए, मैं रुकता हूं आपके लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। आज चल श्रेयस एक साथ करेंगे। लिखना, आलसी मत बनो, आलसी बनने से कुछ नहीं होगा। सुनता है खाली बैठ के दादी माँ की कहानी। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट? और नेक्स्ट जॉब इज, सो हम यहां पे मैं स्टेप्स लिखते जाता हूं। स्टेप्स। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म हमने किया, डोरा द एक्सप्लोरर की तरह हमने किया। स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप क्या है? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। आइए हम चलते हैं हमारे वर्किंग कॉलम में और हम यहाँ पे एलसीएम बनाने की कोशिश करते हैं। एलसीएम किसके बीच में बनेगा बेटा बताओ? 4, 12, 16, 24। यस आया कि नहीं तू यहां तक ना? स्लो। 4, 12, 16, 24 इसका एलसीएम। क्या 4 12 को मारता है? तो 12 बन गया एलसीएम। 12 16 को नहीं मारता है, छोड़ दो। 12 24 को मारता है, तो 12 और 24 में कौन है एलसीएम? 24। 16 अभी बचा रह गया है। अब 24 और 16 में फाइनल मैच आईपीएल का खिला दे। रेडी? चलो आ जाओ। 16 और 24 के बीच में मैच खिला दो भैया। 8 से खेलेंगे सीधा। फर्स्ट बॉल। वो क्या था कल प्रियांशु, वो पंजाब का, उतर गई 6 में। पीयूष की तरह खेलेंगे, उतर गई 6 मारना है। 8 से खेलेंगे। 8 से लेंगे तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, तो एलसीएम कितना बना? 8 2 16 3 48 हमारा एलसीएम बना है भाई साहब। आ जाइए तो शुरू करते हैं। इनको शुरू करेंगे। इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 48 आ जाए? 12 4 48। तो यहाँ 12 डालो, इसमें 12 डालो, -36। अगला वाला 12 है तो फिर 4 से करेंगे, सीधी बात, नो बकवास। स्प्राइट 4/4 कितना आया? 48/-20। अगला वाला 16 है। देख 16 होने से 8 दूनी 16, 3 बचा है, 3 से मल्टीप्लाई होगा ये। 3/3 48 -21। अगला वाला 24 ऑलरेडी है, कितना करना है? 48 डबल करना है भाई साहब, 2/2। तो ये 48, 9 2 -18 आ गए नंबर हमारे। अब सब
तो चलिए देखते हैं बुद्स के साथ लाइक फ्रैक्शन हमने किया एलसीएम हमने किया And 9 by minus 24. कौन सा क्या गलत कर दिया 9 by minus हाँ 9/-24 ओरिजिनल नंबर दिया था क्वेश्चन में, तो ये बन गया -9/24। इसको हमने 2/2 से किया हमें मिला दिया। क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली। मिकी माउस क्लब हाउस हो गया। अब सारे नंबर्स को हम टैली करें। चलो अब ये आंसर सिर्फ शेयर्स बोलेगा। शेयर्स इन सब में क्या करना है, असेंडिंग, छोटे से बड़े तक जाना है। सबसे छोटा कौन है, वाह जाग गया बच्चा, -36/48। इसके बाद plus वाह -21/48। आज तो मैं 2 रोटी एक्स्ट्रा खाऊंगा। इसके बाद -20 48 then minus देन -18। लेकिन यहां एक बात है कि क्या ये नंबर हमें दिए गए थे, नहीं, हमें इनके ओरिजिनल नंबर बनाने हैं। तो चलो इनके ओरिजिनल नंबर बनाते हैं। कहां है 36/48 यानी कि है -3/4। इसके बाद है 21 यानी कि -7/16। इसके बाद है -20/48 यानी कि 5/-12। और इसके बाद है -18/48 यानी कि 9/-24। और हमें मिले 3 कॉइन्स जैक एंड द नेवरलैंड पायरेट्स। उसमें आता है ना। और ये बचाने के लिए मिलते हैं उसे 3 और कॉइन्स जैक एंड द नेवरलैंड पायरेट्स। मजा आया क्या? लाइफ में तूने कभी ऐसा मैच किया? ये लोग समझते नहीं है। लोग समझते हैं मैथ्स मतलब डंडा लेके मारो यार, क्या हो गया। वो कैप्टन कुक होता है ना, ओ कैप्टन कुक। जेक एंड द नेवरलैंड पायरेट्स नहीं देखा है आपने? उसमें कैप्टन हुक होता है। कैप्टन हुक आएगा यहाँ पे और सबको खाएगा। नहीं जेक, कार्टून से वैसे ही तो बात करते हैं ना। तुम नहीं जानते हो मैं क्या कर सकता। ओ ये सही बात है। हुआ, अब तू असेंडिंग सीखा। अब अगर बच्चा तुम्हें ये फील होता है कि मैंने तुम्हारे अंदर असेंडिंग के लिए थोड़ा सा भी चाहत क्रिएट किया है ना, तो अच्छा बच्चा जो होता है वो आज घर पे जाके एक असेंडिंग इतने है ना घर में कर, और करके किसी और को नहीं, पापा को दिया, पापा देखो मैंने असेंडिंग किया है। बिलीव मी हाउ हैप्पी ही विल बी एंड हाउ हैप्पी यू विल बी कि पापा मैं मैथ से डरता था ना, ये देखो मैंने खुद किया है और टेक्निक लगा के किया है। और अगर आपको कहीं डाउट होता है ना एलसीएम में, आप पहले हाथ से पीसो, कोई बात नहीं। मिक्सी लगाना है कोई बात नहीं, आप हाथ से पीस के करो ना बिट्टू, कौन मना किया। 9 भी खत्म हो गया, अरे वाह। ये लड़की तो ये अरेंजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में पता है ना शेष, आज तो डिसेंडिंग में करना क्या है। अच्छा चल इसको डिसेंडिंग में सजा के दिखा, मैं येलो कलर में लिखता हूं डिसेंडिंग। -8 डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा वाला पहले आएगा। the opposite इज द ऑपोजिट, -18/48। लेकिन निशान क्या होगा, इस साइड हो जाएगा। इसके बाद कौन आएगा -21/, इसके बाद कौन आएगा, no so -20 before minus गलत हो गया है, -21 नहीं आएगा। कौन आएगा, -20/48 आएगा। इसके बाद कौन आएगा, -21/48। इसके बाद -36/48। लेकिन दिस वाज नॉट द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन की वैल्यूज डाल के करना है। एक्सरसाइज खत्म होके आ गया। और क्या है इस एक्सरसाइज में, Which of the following is true or false? आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपने घर के लिए कोई लोड नहीं लिया, सारा काम आप यहीं करके गए। बहुत अच्छी मेड है आप, पूरा बर्तन आपने मांजा और हो गया ना सब। थोड़ा है, बर्तन भी मांजा, झाड़ू भी लगाया, पोछा भी किया। अभी घर पे जाके सिर्फ रूम फ्रेशनर मारना है। और जिस बच्चे ने कुछ नहीं किया वो घर में जाके पहले झाड़ू मारेगा, पोछा मारेगा, क्योंकि अगले दिन तो मैं डंडा लेके बैठा रहूंगा। मिकी माउस क्लब हाउस, मजा आया। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगले एक्सरसाइज में जाएंगे, ठीक है। एंड अभी क्या आपके लिए एक वर्क दे देता हूं, थोड़ा सा काम वो है, अगर आपने ये एक्सरसाइज पूरा हो ही गया है
तो इस एक्सरसाइज से पहले कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स भी रहेंगे जो सॉल्व है, आपको सॉल्व देखना नहीं है, यू ट्रीट देम एज सम क्वेश्चन। जो प्रसाद देता है आप मिठाई समझ के खा लो, खत्म बात। यस सर, यू आर ऑल्सो डन। Then you can do the solve problems at home, the solve questions which are there till we meet for our next class on Sunday. And Sunday anyway we are not doing maths, Sunday we are doing science, so we are touching this on Monday next. हाँ, अब हम इसको कब छुएंगे बेटा? Monday. तो Monday तक तो आपके पास बहुत टाइम है। क्या करना है बोलो तो? श्रेयस, सब लोग मैथ्स कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे। कॉपी में सुंदर से उतार के सारे प्रॉब्लम्स कीजिए आपके पास, और सारा प्रॉब्लम एक दिन में मत कीजिए। यू हैव टाइम टिल मंडे। दिन में 3 भी किया तो भी हुआ। देखो घर में रोज मम्मी मैगी बना रही है, देखना इतना खुश हो जाएगी सब लोग। नहीं, इसका मैगी फेवरेट है ना, मेरे तरह। तो रोज मैगी देखना, ब्रश करते वक्त भी मैगी ही गिल रहा है। ठीक है, सो शैल वी कॉल इट अ डे? देखो कितना 1 hour if you spend properly, and in this 1 hour, remember, this girl went home, this boy went home, got a copy, came back. So if you actually sit 1 hour properly, and we did a lot of fun. Did we have any हल्ला गुल्ला scolding? No. हम एक एक्सरसाइज खत्म किए ना, यही घर में आपको करने देंगे। आपका लेग इज पेनिंग, आई वांट टू गो टू द वॉशरूम, आई एम फीलिंग थर्स्टी, सर में दर्द है, सब बेकार की बात है। पता बच्चा, मजा आया?